Yeah. Newton's law of motion and then application of those vector things which we have learned so far. उसका भी बीच बीच में एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे. So Newton's law of motion में we have first law, second law and third law. First law of motion says that first law of motion, Sir, every object remains in the state of uniform motion or in the state of rest unless expelled by an external outer force. right? This is also known as law of inertia. Yes, sir. सर इनर्शिया इनर्शिया पे एक और बार इनर्शिया समझा सकते एक बार. बिल्कुल. इनर्शिया का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. कंटिन्यूटी of physical state. That state could be state of motion, of motion, सर मतलब बॉल जब रोल होती है तब वैसा. right, of motion or of Okay. rest. ठीक है. अब यहाँ पर भी दो चीजें हम लोग को समझनी होंगी. There is something called inertia of motion and the other thing is called inertia of rest. ठीक है. Continuity of physical state, that is physical state of motion or of rest. First law define करने के पहले I would like to walk you through the inertia of motion and inertia of rest. Inertia of motion, inertia of rest का मतलब क्या होता है? Inertia of rest why does a body wants to continue to be in rest if no force is applied on it? कोई भी चीज आई मीन ऑब्वियसली किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहता है तो देयर हैज टू बी सम रीजन, या कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए बॉडी के अंदर जो उसको रेस्ट पर रोक के रखे, राइट? जैसे लाइट को अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, कैन वी डू दैट? नो सर. नो. लाइट इज वेरी स्पीड. So inertia of rest is primarily because of one physical parameter which every matter does have, that is mass. Okay? Mass is the physical parameter due to which every particle has this tendency of inertia of rest. ठीक है? Mass is the mass of the matter is the mass of the matter is the physical quantity is the responsible factor for inertia of rest of that matter, or it is mass that matter. It is mass which restricts that matter from moving, or we can say that mass of the matter restricts it from moving. ठीक है? Therefore, mass is also known as inertia of rest. Mass is inertia of rest.
Similarly, we have inertia of motion. Now, कोई भी चीज मूव क्यों करना चाहता है अगर वो मोशन में है? क्योंकि उसके पास एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है जब वो मोशन में होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा, और उस मोमेंटम के वजह से ही वो हमेशा मूव करते रहना चाहता है। सो इनर्शिया ऑफ मोशन, momentum of the matter, momentum of the matter is responsible for keeping that matter moving. For the matter moving. That is continue the state of motion. So momentum is inertia of motion. This momentum is also known as linear momentum. Momentum का मतलब होता है, whenever we just say momentum, that always means linear momentum. Momentum always means linear momentum. And it is given by small p vector, which is also equal to mass into velocity vector. So momentum क्या होता है? Linear momentum is p vector. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी भी ब्रेक हो रही है? Is it clear now? नो सर, अब हाँ अब अच्छी सारी। So सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ, linear momentum is denoted by p vector. या मोमेंटम इज ऑलवेज, मोमेंटम जब भी हम सिर्फ मोमेंटम बोलते हैं दैट ऑलवेज मींस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम लोग, नोटेशन इसका p वेक्टर होता है। इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ मैटर, and v vector is its velocity. Therefore, momentum becomes a वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें लीनियर मोमेंटम में नेक्स्ट वाले लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम में अगर इनिशियल मोमेंटम हम लोग देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग फाइनल मोमेंटम होगा। नाउ ये दो चीजें जानने के बाद एक तीसरा इनर्शिया भी होता है, इनर्शिया ऑफ सर्कुलर मोशन। इनर्शिया ऑफ सर्कुलर मोशन। Now, inertia of circular motion is because of there is something called as angular momentum. Angular momentum. So, inertia of circular motion is nothing but angular momentum, or angular momentum is a physical quantity which is responsible for inertia of circular motion. Inertia of circular motion का क्या है? सर्कल में घूमते रहने के लिए what is responsible? It's angular momentum, and it is written by L, capital L,
वेक्टर। कैपिटल एल वेक्टर जो होता है दैट इज जस्ट इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। और मॉड के टर्म्स में अगर देखते हैं तो मॉड एल वेक्टर जो होता है, एम तो खैर मास तो रहेगा ही, मास इज स्केलर क्वांटिटी, it becomes mod v vector into mod r vector. r vector क्या होता है? r is the radius of circle जिसमें वो घूम रहा है। पार्टिकल जिसमें घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, उसका रेडियस इज r. So r vector cross p vector gives us l vector और angular momentum. एंगुलर मोमेंटम के बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया लेना है। सिंपल मशीन जब हम लोग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में हम लोगों को सर आप एक समझना बार होगा। दिखा सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, वो सब नोट डाउन करना है। ओके, नोट कर लो। लॉ ऑफ इनर्शिया, every particle continues with its physical state of rest or motion till an external unbalanced forces applied on it. Second law, the external unbalanced force applied on a body is directly proportional to the rate of change of rate of change of momentum. That is, F external will be equal to delta P vector by delta T. That's the rate of change. This is nothing but this is directly proportional to the rate of change. ये क्या है? This is rate of change of momentum. A rate of change of momentum. एक constant of proportionality जो यहाँ पर होता है, it has been found that the constant of proportionality has been experimentally proven the constant of proportionality is 1. Therefore, equation then becomes F external is equal to delta P vector by delta T. अब डेल्टा P क्या है?
delta p vector is change in momentum, momentum. डेल्टा p क्या है? टाइम टेकन to bring the change in momentum. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। जनरली किसी भी चीज का चेंज अगर हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर भी डेल्टा पी क्या होगा हमारा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इज दैट ओके? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल इज फाइनल मोमेंटम, P initial is initial momentum. Final will be corresponding to mass into V final या V simply, and initial momentum will correspond to mass into initial velocity. ठीक है, U initial या simply U. Is that okay? Where V is equal to final velocity and U is equal to initial velocity. इम्पल्स। इम्पल्स का नाम सुना है हम लोगों ने पहले कभी? इम्पल्स सर इम्पल्स तो इम्पल्शन टर्म सुना था। सडन चेंज ऑफ मोमेंटम। सर वो हार्ट बीट का नहीं, इम्पल्स। सडन चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू शॉर्ट टर्म फोर्स एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम बट इट इज सडन इन नेचर। अगर सडन नहीं हो रहा है तो फिर उसको इम्पल्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक बॉल मैं ओके, मैं ऐसे देख बताता हूँ आप लोगों को। एक बॉल यहाँ पर लिया मैंने, मैंने इसको आगे की तरफ हिट किया और ये धीरे धीरे मतलब ये आगे बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे करके रुक गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो ये रुका, यहाँ पर इसको मोमेंटम मिला। ठीक है, इट गॉट सम मोमेंटम। सपोज ये 10 यूनिट मोमेंटम 10 केजी मीटर पर सेकेंड इसको मिलता है मोमेंटम, और ये फाइनली जाकर के रुक गया आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू से 5 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक अगेंस्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से ये रुक जा रहा है। राइट, नाउ दिस चेंज इन मोमेंटम विल नॉट बी कॉल्ड एज इम्पल्स। ठीक है,
ऑन कॉन्ट्ररी मैंने एक बॉल को यहाँ से मारा, जैसे हॉकी खेल रहे हैं हम लोग, हॉकी स्टिक से हमने एक बार हिट किया, ये आगे आगे जा रहा है, या फुटबॉल खेल रहे हैं, पैर से हम लोगों ने बॉल को मारा, बॉल आगे आगे जा रहा है, थोड़ी देर के बाद एक बार और हिट करते हैं हम उसको। तो पहली बार हिट किया तो आगे आगे जा रहा है, उसका कुछ स्पीड यहाँ पर है, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से थोड़ा सा कम हो गया। मान लो शुरू में हमने 10 kg मीटर पर सेकेंड दिया, फ्रिक्शन की वजह से कम होकर के 8 kg मीटर पर सेकेंड हुआ, और फिर से मैंने इसको किक मारा। अभी किक मारूंगा तो ये अचानक से इसकी वेलोसिटी तुरंत बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ पर 8 kg मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी पॉसिबली 18 किलोमीटर पर केजी पर मीटर पर सेकेंड हो गया। नाउ यहाँ पर जो सडन जर्क मैंने दिया, सडन जर्क किक जब आप करते हो तो कंटिन्यूअसली किक तो करते नहीं हो ना, इट्स अ सडन जर्क। दैट सडन जर्क is sudden change in momentum, and this is called as impulse. Are we getting this point? Impulse समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो I'll again explain with another example. हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर ने बॉल फेंका, बॉल का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैट्समैन की तरफ आ रहा है बॉल, ठीक है। बैट्समैन बैट से इस बॉल को हिट करता है आगे की तरफ, बॉल और बैट के बीच में कितने देर के लिए कांटेक्ट रहता है? फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, एम आई राइट? बट उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के इम्पैक्ट की वजह से द डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस एज वेल एज इट्स मोमेंटम चेंजेस, मोमेंटम इज इंक्रीज, राइट। नाउ यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन या शॉर्ट टर्म चेंज ऑफ मोमेंटम क्रिएट किया गया बैट की वजह से बॉल में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सडन चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, बहुत छोटा टाइम फ्रेम ऑफ ओके। सो आई होप इम्पल्स के बारे में अभी थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को। व्हाट डू आई मीन बाय इम्पल्स? इम्पल्स को जनरली इम्पल्स, हेलो, इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होता है। Yes, sir. Where F is equal to force and delta T is equal to time span for which force is applied, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन होता है, शॉर्ट टाइम स्पैन, मे बी मिली सेकेंड रहेगा, 0.2 मिली सेकेंड या 4 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है। तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए जब फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। और ये इम्पल्स किस चीज के बराबर होगा? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, impulse will be equal to, which is force into delta t
it is also equal to change in momentum, that is P final minus P initial, which is also equal to mass of the body into final velocity minus mass of the body into initial velocity, or m into v minus u. Is that okay? अब चूंकि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट इस एक्सप्रेशन को देख करके, अगर दो क्वांटिटीज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और उससे कोई तीसरी क्वांटिटी आ रही है, या ऐड कर रहा हूं उससे कोई तीसरी क्वांटिटी आ रही है, तो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो इम्पल्स का यूनिट क्या रहेगा? इट विल हैव सेम यूनिट एज इट will have same unit as momentum. ठीक है? That is impulse. Next thing is let us work something more about it. F external जो था हमारा, ऊपर हमने इस चीज को छोड़ा था, डेल्टा P by डेल्टा T था, राइट? और इसी से एक्चुअली ये इम्पल्स आया है मेरा, इम्पल्स F डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P विच इज PF माइनस PI. ठीक है? अब मुझे इसको आगे लेकर के जाना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डेल्टा P को मैं mv माइनस mu बाई डेल्टा T लिख देता हूँ. m को कॉमन लिया, v माइनस u by delta T किया. Now, what is this formula? Have we seen this ever? I believe you guys must have seen this. Is it equal to a vector, where a vector is acceleration vector? Am I making sense? So external force, unbalanced external force, this F external is unbalanced external force or net force. ठीक है? Unbalanced external force. ठीक है? Is equal to mass into acceleration of the body. Now, after knowing these two laws, or especially the second law, it's time for us to practice some problem or attempt some problem. ठीक है? A body of mass mass 10 kg is moving in a straight line with speed of 10 meter per second. It was hit by a rod and its speed changes to 25 meter per second. Find its initial
and final momentum B. Change in momentum C. If change in momentum took place in 5 seconds, find the external force external unbalanced force if change in momentum took place in 5 milliseconds, find the impulse, find the applied impulse. Why matter? Find the applied impulse. Can we do this? Attempt this? सर थोड़ा सा ऊपर दिखा सकता क्वेश्चन का? हाँ. हो गया था? फिर हो गया? हाँ. मुझे इतना आपका अरे हाँ मैं अभी बैठ